Very good evening to one and all. I, Swati Shetty, NSS volunteer, welcome you all to our national level webinar on turning dream of women's equality into reality on the occasion of Women's Equality Day, organized by the NSS unit of Bansanga's SM Shetty College of Science, Commerce and Management Studies. I am delighted to welcome our Principal Sir Dr. Sridhara Shetty, our Vice Principal Ma'am Dr. Liji Santosh, and our Vice Principal Sir Professor Sandesha Shetty. Our resource person for today's day, Mrs. Asha Kala Ma'am, our NSS Program Officers, Professor Vijay Vishwakarma Sir and Professor John Menezes Sir, and our NSS Teachers in Charge, Professor Ashish Navik Sir, Professor Swati Shetty Ma'am, and Professor Richa Sharma Ma'am. And I would also like to acknowledge the presence of all the participants who have joined in large numbers. About Women's Equality Day, every year 26th August is celebrated as Women's Equality Day. Several women's organizations celebrate this day all over the country and work hard to provide equal opportunities to women in education and employment. As we know that without women, whole human species would cease to exist. Women bear child and give birth to a life. She plays several roles in her life. She is a mother, daughter, wife, sister, teacher, friend, etc. She helps the children to grow and teach how to fight against failure, success, and how to try again. Not once or twice, but our Indian women have proved several times that they can stand with the men and even make country proud. Some of them are Kalpana Chawla, Neerja Bhanuch, PV Sindhu, Saina Nehwal, Mary Kom, PT Usha, and many more. Now, I would like to call our Principal Sir Dr. Sridhara Shetty to address the gathering. Good evening, one and all gathered here. Our esteemed guest today, Mrs. Asha Gala, and our Vice Principals, Dr. Liji Santosh and Sandesh Shetty, NSS Program Officer, Mr. Vijay Vishwakarma, and all my colleagues, and my dear students. At the very outset, I appreciate my teachers and students for keeping this very meaningful and quite relevant session on 26th August. Now, women's equality, dreams of women's equality into reality. My dear student just now told that PT Usha, then Chawla, etc., etc. But these are all the exceptional cases. But we want a general rule that almost all women should be equal to men and all that. So therefore, very apt, quite relevant, and we understand that Mrs. Asha Gala is the right person to address, because throughout their career, Madam has involved herself into all these things, taken the initiatives and all those things. Of course, it's happening now, but the speed is not sufficient. In a bigger pace, we have to move. So Women's Equality Day is quite relevant. And ma'am, on behalf of the college, I extend a very cordial welcome to you. And I also welcome all my vice principals and all Vijay Vishwakarma, all my teachers and dear students to this program. I wish the function quite meaningful and relevant. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir, for very kind words. Thank you, sir. On this note, I would like to call our NSS volunteer Vaishnavi Gaikwad to introduce our resource person.
Okay. Vaishnavi, are you there, beta? Vaishnavi? Yes, sir. Actually, I have joined from 2 devices, so they were Okay. not giving permission to unmute. Okay. Okay, so, okay. Yeah. okay. Thank you, Swati. Thank you, Swati. It gives me a great privilege to introduce our resource for the day, Ms. Asha Gala ma'am. Asha ma'am is a retired professor of SIS College and was the head of economics department with a teaching experience of 45 years. She is also the joint secretary of Mumbai University and College Retired Teachers Welfare Association. Ma'am is also a managing director for a rural healthcare and women's development center in village named Nani Tumbi at Kutch. She was also a former chairperson of Board of Examiner and Moderators Committee at University of Mumbai and also served as an NSS program officer for last 30 days. Asha ma'am has conducted more than 20 social awareness camps in the tribal rural areas of Thane, Raigad, Ratnagiri, and Sindhudurg districts of Maharashtra. Ma'am has also worked with non-governmental organizations such as UNICEF, National Association for the Blind, Impact India, Trimukti Sangatna, Samaj Pragati Sahyog, Tarun Mitra Mandal, Alert India, and many more. Asha ma'am was awarded with Nari Shakti Award by Bada Sayyar Vrind, a women's organization, Vocational Excellence Award by Rotary Club, Governance Trophy for motivating and mobilizing the highest number of blood donors, and also Nari Gaurav Award by Kutchi Mahila Federation. It feels great to have you, ma'am, among us, and it's a pleasure to listen to you today. We welcome you, ma'am. Thank you, Vaishnavi. Now I request Professor Asha Gala ma'am to take over the session. Over to you, ma'am. Thank you very much. Am I audible and am I seen? Yes, ma'am, you're audible. Ishan, you remove this so that I can start sharing, ma'am, presentation. Ma'am, shall I start to share? No, Niji, are you asking this right now? Yeah, no. No, that will be at the end. That will be at the end, I'll tell you. Okay, ma'am. Okay. I'm just trying to see whether the size of my screen is all right. Okay. Yes, Yeah, technology makes you little like, okay, fine, see whether everything is fine. So we miss at the outset. Let us all celebrate today, right? We've said we are celebrating Women's Equality Day. 3 cheers to all of us, including young, dark and fair, handsome men who joined with our dear principal also. Since it's a celebration, hip hip hooray to all of us. And why are we celebrating? Actually, a few years back, probably we only knew like, okay, I mean, Mahila Divas, Antarashtriya Mahila Din Vagere. So suddenly, now when Kalpana tells me, okay, we are also celebrating Women's Equality Day. And then I said, oh my God, that's the day. Why are we actually celebrating? So any Mauka celebration ka theek hai, but this is a day when American women got right to vote. And that is what they celebrated. And worldwide now everybody is celebrating. So मौका कुछ भी हो हमें celebrate करना है और वो celebration से कोई रोक नहीं सकता है. I'm so grateful to the college, okay, SM Shetty College, especially Principal Dr. Shetty, Vice Principal Liji Santosh. When I say Vice Principal, थोड़ा मुझे खटकता है because Liji is a dear friend. No, just another college. friend, Professor Kalpana Rai Menon, whom I saw as a very happening chairperson of the Women's Development Cell and who invited me and we rocked together and we said like-minded friend, like, okay. And meeting Professor Vijay Vishwakarma as a young happening NSS program officer who can say, okay, औरतों को चांस दिया जाना चाहिए, चलो आज आपका दिन है, सुन ही लेते हैं करके. And I think there is, if any other co-program officer, I might have forgotten the name, and very dear NSS volunteers. Swati was very kind enough to coordinate. I kept her waiting 48 hours before. She kept on sending, like, send me your photograph and this CV, biodata. And I said, Arey, ya kaun sa photo bheju? Believe me, I had to go through 2,500 to find out my photograph where I was a solo person, looking good, presentable on the poster.
and looked like how an Indian woman should be or should not be in my heart. And I chose a photo where traditionally I was expected to wear for an occasion a badani sari, a tikka, and a lipstick, which none of these I ever do otherwise. But that was a family occasion. अगर तभी मैंने वो नहीं किया होता तो ससुराल वालों की बदनामी हो जाती। तो थोड़ी सी मतलब कि इज्जत रखने के लिए गांव में सबके सामने, फिर भी बॉयकट का कुछ नहीं हो सका, वो तो वैसे ही रहा। बाकी सारी चीजें ठीक ठाक कर ली कि झुमका पहन लिया, बिंदी लगा दी, लिपस्टिक लगा दी, बांधनी साड़ी जो कच्ची विमेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी डाल दी। और फिर फोटो निकला तो ऐसे अरे यार ये फोटो सही है कि इसके बारे में मैं कुछ बोल सकती हूँ। व्हाई वाज इट? मेरी ऑल नारीवादी फेमिनिज्म लाइक ओके तभी वैसी की तैसी जो था तभी बोला था कि अरे यार ये फंक्शन में इतना तो करना मिनिमम जरूरी है, कर लो, बहुत कुछ घातक नहीं है, अच्छे ही दिखोगे, फोटो वैसे अच्छी आई। सो आई पिक्ड अप दैट फोटोग्राफ विद अ पर्पस कि हाउ many a times social pressures, whether you believe or not, we get into it and we say चलो इतना तो कर ही लेते हैं, और उसके बाद में जो लगातार आता है ना वो जो स्टोरी होती है वो अलग ही होती है। यहाँ बाय द वे आई कैन सी वन ऑफ माय रिश्ते में जो मेरी बहू लगती है गीता, वो भी यहाँ मेरे को सुन रही है और हंस रही है यहाँ लाइक ओके। तो ये बड़ा मतलब एक मजेदार कहानियों का दौर चलने वाला है। बट एज एन इकोनॉमिस्ट आई हैव टू थ्रो सम like okay statistics here to sound like an academician intellectual, where if people like Dr. Mridula Ramanna and Dr. Ujjwala Bhosle are here, मेरी तो बोलती बंद होनी चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय स्कॉलर्स जैसे डॉक्टर मृदुला रमन अगर मुझे सुनने के लिए आए हैं तो आई हैव टू मेक इट लिटिल मोर इंटेलेक्चुअल आल्सो ना। सो शुरुआत करते हैं कि दिस इज वेयर द बिगिनिंग इज कि ओके वुमेन्स इक्वालिटी डे व्हिच बिगिंस विद सेइंग दैट लेट्स सेलिब्रेट एन इवेंट where women fought, struggled and said कि हम क्यों वोट नहीं दे। Can you imagine in a country like US कि आप सोचोगे कि यहाँ तो सब ठीक ठाक ही होना चाहिए था और वहां औरतों को लड़ना पड़ा कि राइट टू वोट के लिए। तो आज अगर भारत जैसे देश में इन अ मोस्ट लाइक ओके द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, if women have to struggle for something, let us understand there is a history behind it, there's a chronology behind it, there's a evolution behind it. मजे में लोग कह ही देते हैं कि बहुत ज्यादा होशियारी मत मारो, झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है। अब झांसी की रानी यू टू टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट या गाली दे रहा है वो पता नहीं चल रहा है कि झांसी की रानी ने जो लड़त लड़ी, झांसी वाली वो मर्दानी थी, तो मर्दानी बन के वो लड़त लड़ी, उसकी नुमाइश करनी है या आप एक टॉन्ट में बोल रहे हो कि बहुत झांसी की रानी बनने की कोशिश मत करो, अपनी औकात में रहो। So there is a history behind it as to how our Sanskriti, mythology, though the topic doesn't say inequalities in India, I'm more familiar, comfortable, and I'm going to talk more about inequalities in India as far as women is concerned. But that doesn't mean कि worldwide inequalities नहीं है। मतलब हमें जो लगता है ना कि सब everywhere it's very very nice, सब ठीक ठाक ही, वैसा नहीं है। आज भी अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज के स्टैटिस्टिक्स में भी आपको पता चलता है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज, फर्स्ट फॉर्च्यून 500 धनाढ्य कंपनियों में भी कितनी महिलाएं हैं। हार्डली अगर देखा जाए तो यू विल हैव हार्डली लाइक ओके 10 to 15% of the women will be, देखो sorry, those who do not know that I'm the speaker are calling up for different reasons, okay, and I forgot to keep my phone on silent, so apologies for that. Okay, so you find that only 5% of the top honor in these 500 fortune companies go to the women. Now हिसाब लगाओ कि ये 500 धनाढ्य कंपनियां हैं, उसमें सिर्फ 5% महिलाओं को कोई नमस्ते कर रहा है, कोई हैट्स ऑफ कर रहा है, कोई बोल रहा है कि आप ठीक कर रहे हैं। तो अगर ग्लोबल ये सिनेरियो है, दिस इज अ सिनेरियो एट द ग्लोबल लेवल, इंडिया की तो बात ही मतलब कि अलग ही रहेगी। ठीक है, व्हाट इज अ ग्लोबल जेंडर गैप? If you see the global gender gap it is about 68%, okay, and there is in the global gender gap also
एजुकेशन और हेल्थ के बारे में तो थोड़ा ठीक ठाक ही है एट अ ग्लोबल लेवल, बट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन it is only 59%, and political empowerment is only 22%. This is at the global level, that the extent of gender gap, which is data-based, it's a data given by the world, none other than the World Economic Forum, which gives us the glimpse of the extent of inequality. So let us not think that it is only in a country like India that we need to empathize or sympathize or discuss something called as women's inequality, which is a part of a larger issue of gender inequality. We are not talking about gender inequality as a whole. We are just talking about women's inequality. So just for the sake of simplicity structuring, say that why are we discussing this today? And let me go back to the topic. The topic I just in 5-10 seconds when Swati was asking, I said, I'll give you a choice, one or two. And I kept it as turning the dream of women's inequality into reality. तो अब क्या होता है, ये ड्रीम की बात आ गई तो सपने, हमारी फ्रेंड यहाँ जो उज्ज्वला सुन रही है रोज हमें सपने दिखाती है हम सब में, ठीक है, तो अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, सपने किसी को अच्छा नहीं लगते, फिर वो राजेश खन्ना क्यों ना हो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो अगर राजेश खन्ना इंतजार कर सकता है सपनों की रानी का, तो क्या हम लोग सपने नहीं देखते? लेकिन हमारे सपनों की रानी कौन है? हमारे सपनों की रानी है ये सामाजिक समता, ये स्त्री समता जो है, ये सपना है मेरा कि ऐसा विश्व हो कि जहां विषमता ना हो, let there be a world without inequality. So turning that women's equality becomes my dream. And हम बोलते हैं कि सपने तो सपने होते हैं, वो सच्चाई थोड़ी होती है। अर्ली मॉर्निंग का सपना देखा होगा तो शायद वो सच हो जाएगा, ये सारे मिथ होते हैं, लेकिन ये मिथ के पीछे भी कोई साइकोलॉजी है कि अगर वो सपना सच हो सकता है तो वो सपना हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि आज सुनहरी सुबह को जो सपना आया था वो क्या सपना था, और वो अच्छा था तो वो हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नाइटमेयर होता है तो बोलते हैं भूल जाओ, वह शायद सही नहीं होगा। तो ये इसके में why do I say that women's inequality is a dream? Because today it is not the reality. If it was the reality, we wouldn't have said this is a dream. Sustainable Development Goals में 5th goal talks about like okay women's और gender equality. तो ये गोल है ग्लोबल लेवल पे, देश को भी उसके लिए कुछ करना है, और हमारे लिए ये सपना है क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, या नग्न वास्तविकता नहीं है, कि रियलिटी में रोज बरोज में हम जब देखते हैं तो कुछ अलग ही है। कहाँ है समता, समानता कहाँ है? Again, there's a difference between equity and equality. So equality is your goal, but you can use the equity as your instrument, as a tool to achieve that. And you find in equity may not be available in most of the fields that you see. Since I'm from the stream of economics, let me talk a little bit more in terms of economics to begin with. Where all do we see inequalities in economic aspects? To begin with, if you say population of India, कुछ खास inequality नहीं है, यहाँ हम आधी प्रजा है, like okay, I mean if you're 52% है या 48% है, but आधे 50-50 के बराबरी में there is, if you look at the demography, the gender, but फर्क कहाँ पड़ता है? फर्क कहाँ पड़ता है कि जब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स आते हैं, इंडिकेटर्स आते हैं, वेरिएबल्स आते हैं, तो फर्क पड़ता है। Equal pay for equal work or for the same work? No. I'm sure all of you have this type of experience where you may say in theory there is an equal pay. Is it only Indian phenomenon? No. Okay. There are gender wage gaps all over the world and in India very much so. Okay. How much gender gap is there? As I was talking about USA, you have gender wage gap to the extent of 16%, okay, in the country like USA, whereas here we have to the extent of 26 to 27% of the gender wage gap itself.
What does it mean? That you average out the wages of the male and female, you will find this much of differentiation. And over the years, we are trying to reduce the gap, but does this gap get reduced very easily? No. Okay. You talk about like contribution of women to the economy. Is GDP being considered? Is women's work or contribution, paid work and unpaid work? I think Ritu was to join. I don't know if she's already there. She said, I'll be a little later, but Dr. Ritu Diwan, who's a hardcore feminist and a good friend of mine for almost 4.5 decades, with Action Aid, they did wonderful job of research, and in the book and the report they come out, and even McKinsey's report and World Economic Forum report point out how much of contribution of women goes as unpaid work. It's not that there is no unpaid work being done by men, but when you look at the percentage, it's very interesting that out of the total unpaid work being done by everybody together, you find that in India, 85 to 80% of the unpaid work done is by women. What does it mean? That remaining 13 to 15% of the unpaid work is done by men. Those of you who are students, I'm making the data in a very simple manner. It's just, if you round it up, it's an 80-20 situation, okay? That is total unpaid work. What type of unpaid work? अभी मेरे घर में suppose we are only 3 people. मैं, मेरी बेटी और मेरा एक ही सब प्यारा सा husband, ठीक है? घर में बेल बजती है, कौन दरवाजा खोलेगा, वहां से शुरू हो जाता है. मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी थकी हुई, लेकिन इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि दरवाजा खोलना है, टेलीफोन की बेल बजी है, इंटरकॉम पे सिक्योरिटी वाला कुछ पूछ रहा है, तो वो मैं उठाऊंगी फोन या मैं दरवाजा खोलूंगी. बेटी बीमार पड़ गई तो उसको अस्पताल लेके जाना है या डॉक्टर के लिए फोन करना है, या मेरी माँ या सास बीमार हो गई तो उसके साथ में रात भर बैठना है. एक केयर गिवर के बेटी की, दिस इज वेरी हिलेरियस, PTA, okay? Parent Teachers Association. I'm sure Dr. Mridula Ramanna, whose daughter also studied in the same Mansi, studied in the same school as my daughter. And every time there was an open house or PTA, we being in the teaching profession, we had to like, okay, go rush, like, okay, those days एक बीच में फ्री लेक्चर मिलता है क्या, रिसेस 10 मिनट का है उसके साथ में, या प्रिंसिपल से परमिशन लेके 4 घंटे हो गए, मैं आधे घंटे के लिए टैक्सी करके जाऊं सायन टू वडाला, वहां ओपन हाउस में पेपर्स पे साइन करके आऊं और भागती भागती फिर से कॉलेज में आ जाऊं. तभी 5 आवर्स कंटिन्यूसली का रूल नहीं था. लेकिन एक भी दिन ये नहीं हो पाया कि मेरे बदले में मेरे हस्बैंड जाके ओपन हाउस में वहां अपनी बेटी का रिजल्ट उन्होंने देखा. हालांकि मैंने भी ये नहीं कहा कि तुम क्यों नहीं जाते, ये इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड कि भाई आशा है, सक्षम है, महिला है, पढ़ी लिखी है, कर ही लेगी. सो अनपेड वर्क कुड बी ऑफ एनी टाइप. Okay, all of you must read the report by Ritu and her friends. Like, okay, it's a wonderful, authentic report as such. Like, okay, so there is 80% of the total unpaid work being done by women, whereas only 17, 18, 20% being done by men. Where is the equality? What are we talking about in that case? Okay, look at the glass ceiling. Okay, everybody has heard the word glass ceiling. What does it mean? If it was in-person physical interacting session, मैं किसी के पास आके पकड़ के तुम्हें सेहल तुम्हें पूछती कि सेहल राय, according to you, have you heard the word like glass ceiling? क्या होती है? Glass ceiling, yeah? No, ma'am, I haven't. Okay, fine. तो अच्छा होता है कि वेबिनार में, सेमिनार में जब कुछ नया सीखने को मिलता है. तो ग्लास सीलिंग ये है कि जिसको पाना बहुत मुश्किल है, वो कांच की सीलिंग है, उसको पकड़ना मुश्किल है, उसको छूना मुश्किल है, वहां तक जाओगे तो टूट जाएगी. वो बैरियर बना दिया गया है, वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन वहां तक ऊंचे तक आप नहीं पहुंच सकते, यहाँ तक ही जा सकते हो, उसके बाद में नहीं. तो औरतों के बारे में ये ग्लास सीलिंग बहुत ही मतलब कि इतना कड़वा सच है कि जब आपका प्रमोशन होता है, तो आई एम सॉरी टू से, अगर सर्वे में मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रही थी, बहुत बढ़िया कॉलेज, लेकिन आज भी मतलब कि 60 साल की उम्र, कॉलेज की उम्र में सिर्फ
महिला प्रिंसिपल ये दूसरी जो हमारी छात्रा ही रही है इतिहास में। कि सारे कोई मर्दों के खिलाफ कोई ये नहीं है कि वो क्यों थे, लेकिन ये इतिहास है। हमारे कितने प्राइम मिनिस्टर महिलाएं हो गई इंडिया में। तो ये देखिए कि इसके आगे तुम्हें बढ़ना हो तो नहीं, ये इतने तक आए तुम वाइस प्रिंसिपल बन सकते हो। लीजी और डॉक्टर शेट्टी की बात यहाँ नहीं हो रही है, बट उसके आगे तुम्हें बढ़ना है तो लाइक मुझे याद है कि मैं नाम नहीं कहूंगी, मैंने 3-4 कॉलेजेस में पहले पढ़ा लिया। एक कॉलेज में जब ये एनएसएस का प्रोग्राम है तो नॉट मी बट यू, रूरल कैंप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 10 दिन का रूरल कैंप करना है, तो मैं इस कॉलेज में नई थी और उससे पहले मैंने 8-9 साल एनएसएस का एज ए स्टूडेंट वॉलंटियर प्रोग्राम ऑफिसर काम करके आई थी। और इस कॉलेज में मुझे लगा कि रूरल कैंप्स वगैरह सब या तो हो ही नहीं रहे या ठीक से नहीं हो रहे। तो मैंने प्रिंसिपल को जाके, मैं नहीं थी, 1 ही साल मतलब हुआ था आए हुए, और मैंने जाके कहा कि मुझे अंडर एनएसएस रूरल कैंप ग्रामीण शिविर लेनी है। उन्होंने अपने मिजाज में अपने लिहाज से बहुत ही कॉन्फिडेंस से मेरी ओर में देखा और कहा, बट यू आर अ वुमन, हाउ विल यू मैनेज? इट्स अ रूरल कैंप, 10 days कैंप, you are a woman, you are a lady, how will you manage? अब मुझे मन में तो लगा कि एक आध शायद गाली तो दे नहीं सकते हैं, वो मेरे हेड थे, प्रिंसिपल भी थे, ठीक है, लेकिन मन में ये लगा कि ये कहाँ से सवाल आ गया भाई कि वही रूरल कैंप अगर भाई कि जैसे ये आपके प्रोफेसर इंचार्ज है विजय साहब वो संभाल सकते हैं तो आशा गाला क्यों नहीं संभाल सकेगी? थोड़ा हाजिर जवाबी होना जरूरी होता है ऐसे सिचुएशन में। तो मैंने फट से कह दिया कि सर आई डू अंडरस्टैंड योर कंसर्न, गिव मी अ चांस फॉर 1 day, आई मीन 1 कैंप, एक बार चांस दे दो। कुछ गड़बड़ हुई अगर मैं नहीं संभाल पाई तो नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट कम एंड आस्क यू, कि आई विल ओन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं संभाल नहीं पाई। बट आपकी जो ये धारणा है, असम्पशन है कि भाई मैं, और ठीक भी मैं तभी मतलब अभी भी जवान हूँ या पता नहीं, लेकिन ये जो कहानी है ये 40 साल पहले की कहानी है। तो तभी मैं उम्र में भी छोटी थी तो उनको विश्वास नहीं आया होगा, लेकिन कहा ये गया कि तुम औरत हो तो तुम कैंप कैसे संभालोगी। कैंप इतना बढ़िया हुआ कि फिर तो लगातार कैंप की हर कोई कैंप में आना चाहता था, मजे करते थे। लेकिन कैंप की बात आने पे ये भी होता था कि कैंप में साझा चूल्हा होता है, सबको कुछ ना कुछ काम करना है, तो किचन का काम भी करना है। तो कई बार ऐसा होता कि लड़कों ने भी करना ही है ना, खाना पकाना ही है, तो लड़के भी खुशी खुशी कर लेते थे। एक बार ये हुआ कि चलो नदी में तालाब में नहीं जाने देंगे, लेकिन तो फिशिंग करने की बारी आई कि कैंप में मजेदार, कैंप खत्म हुआ और अभी जल्लोष से सेलिब्रेट कर रहे। तो हमारे ये मैं स्टूडेंट थी तभी, और एक छात्र था बीएससी का, भी मैं नाम नहीं रही हूँ, प्रिंसिपल भी बन गए कॉलेज के, यूनिवर्सिटी में भी वो पदाधिकारी बन गए, और वो हमारी कॉलेज में मेरे साथ में थे, तो बहुत ही छेड़छाड़ भी होती थी। तो उन्होंने ये सोच लिया कि प्रोफेसर ने फिशिंग की परमिशन दे दी लास्ट दिन के लिए, पहले नहीं थी, लेकिन उस बंदे ने ये मान लिया कि फिशिंग सिर्फ लड़के करेंगे, लड़कियों को फिशिंग तो कुछ आएगा नहीं। और इस बात पे मैंने चैलेंज ले लिया कि तुम्हें अगर ये लगता है कि फिशिंग सिर्फ तुम ही कर सकते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, हम भी कर सकते हैं। तो बातें छोटी छोटी होती है, बट जब डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो अपने आप से शुरुआत जो खुद से करनी होती है। ये तो बात हो रही थी जो ग्लास सीलिंग की है, तो टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पूरे इंडिया के आप सारी कंपनियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले लो तो सिर्फ 16% ऑफ द वुमेन आर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, 16%। इसका मतलब क्या हुआ, 84% मर्द है। मेरी कोई लड़ाई मतलब की दुश्मनी मर्दों के सामने नहीं है, ये सामाजिक व्यवस्था की बात है, आर्थिक व्यवस्था की बात है कि जब चुनाव होता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या तो इलेक्शन या नॉमिनेशन होता है तो दिमाग में यही है कि भाई मर्द ही आएंगे यहाँ या मर्द ही सक्षम होंगे। तो ये जो मानसिकता है, एटीट्यूड है, ये बदलने की जरूरत है कि क्यों किरण मुजुमदार शॉ नहीं कर सकती है क्या अच्छा काम है, ठीक है। तो यहाँ जो है तो ये इकोनॉमिक जो बात है कि वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में दिन ब दिन लाइक ओके लास्ट कम से कम अपने लास्ट 20 साल में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में इंडिया में
30%, लास्ट मतलब लॉकडाउन से तो और भी बदतर हो गया है कि देयर इज डिक्रीज इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। और सिर्फ लॉकडाउन में ही 1/3 ऑफ द women who were already in the labor force, in the workforce, got out, which means कि एक तो मार already पड़ रही थी कि workforce में क्यों नहीं है। अभी all the students sitting here or all young girls and women should ask themselves कि भाई आप आधी तादाद में population में महिलाएं हैं, but when it comes to workforce में क्यों नहीं है? Unpaid work में है 80%, okay? लेकिन वर्कफोर्स में क्यों नहीं है? इसका कोई जवाब अपने आप में टटोलिए, पूछे, आपकी घर की कहानियां देखिए। आस्क योरसेल्फ, हाउ मेनी ऑफ योर relatives, okay, family members, immediate and distant families are actually working, okay, women. When I say working in the traditional sense, working for income, okay, for production, etc. And if you're not working or not recognized, why is it so? उसके कारण क्या हो सकते हैं? आपके कॉलेज की में एक अच्छा सा वाकया हुआ है, रोज बरोज की जिंदगी में ये हो जाता है। मेरे पास कार नहीं है, मैं उबर से अब चली जाती हूँ कहीं भी। पहले पीली काली रिक्शा, अब BST बस, ट्रेन सब चलता था। अभी तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि ट्रेन चल नहीं रही है, BST। तो उबर के ड्राइवर से मेरी सबसे बातचीत होती रहती है। तो एक दिन उबर के ड्राइवर से बात हुई, मैं नाम थोड़ा बदल देती हूँ, इरफान भाई, बहुत अच्छे थे, सुलझे हुए, पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छे विचार, सामाजिक रिफॉर्म से। मैंने पूछा उनको कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? तो बोले एक बेटी तो बीकॉम हो गई, एमकॉम करना चाहती है और पढ़ाई में उसको बीकॉम में 91% आए। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, बीकॉम में 91% इज वेरी गुड। मैंने तुरंत में पूछा कौन सा कॉलेज? यू नो द सीक्रेट, कौन सा कॉलेज था? गेस, SM शेट्टी कॉलेज। कैन यू बिलीव इट? ये मैंने कॉइन नहीं किया है, ये एक 15 दिन पहले की बात है। और मैं उछल पड़ी, फेसबुक से मैंने लीजी संतोष मैडम का फोटो दिखाया और बोला देखो वहां की वाइस प्रिंसिपल तो मेरी अच्छी दोस्त है, आप उनसे कहना आपकी बेटी को और कुछ मदद चाहिए, आगे बढ़ना है। तो बोले नहीं, बेटी बहुत होशियार है, अगर उसी कॉलेज में टीचिंग का जॉब मिलता है तो हम भेजेंगे, और कहीं नहीं भेजेंगे। टीचिंग का जॉब ही सिर्फ करने देंगे और कुछ नहीं करने देंगे। बहुत सुलझा हुआ आदमी, बहुत विचार ऊंचे। लेकिन जब बेटी के करियर की बात आई तो बोले या तो घर पे बैठे ट्यूशन करेगी या तो टीचिंग में जाएगी, तो अपने कॉलेज में ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। और तो मैंने पूछा कि इरफान भाई आपके इतने बड़े अच्छे विचार हैं, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि बेटी की प्रगति का सवाल है। तो बोले नहीं, लेकिन मैडम हम तो सब सही सोच रहे हैं, लेकिन लोग, समाज तो ऐसा नहीं सोचता है ना। उसकी सेफ्टी का सवाल है, सलामती का सवाल है, माहौल सही नहीं है, बाहर निकलेगी क्या कुछ हो जाएगा। तो मैंने बोला आपकी बेटी पे अपना विश्वास नहीं है? उसको इतना सक्षम बनाओ कि कुछ नहीं होगा उसके साथ में। तो बोला मैडम मैं जरूर सोचूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो ये बात, ये वर्क पार्टिसिपेशन में विमेन क्यों नहीं है ज्यादा, इसके सामाजिक पहलू भी होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सेफ्टी। दूसरा, आई कम फ्रॉम द कम्युनिटी विच इज लार्जली बिजनेस कम्युनिटी। तो एक माइंडसेट होता है कि जरूरत नहीं है, कि हम तो खाते पीते लोग हैं, हमारे मर्दों के पास इतनी ताकत है कि दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द women in the house. So women do not have to go out for the work, or women do not need to earn income because we are capable of earning enough. अब ये कहाँ का हुआ? ये सोच ही कितनी घटिया है कि जस्ट बिकॉज मर्द इनफ कमाता है, इसके लिए औरतों को कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं उसको खिला सकता हूँ, मैं उसको घर दिला सकता हूँ, मैं उसको वर्ल्ड टूर पे जा सकता हूँ, तो उसको जरूरत ही क्या है ये सब करने की? नाउ देयर कुड बी इनफ नंबर ऑफ रीजंस, बट इकोनॉमिक सिचुएशन विल टेल यू कि देयर इज ग्लास सीलिंग, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में विमेन बहुत कम है। और इसके आगे बहुत बार हम महिलाएं भी ये सोच लेते कि सही है, चलो ठीक ही है ना, इसमें गलत क्या है? या तो एक गिल्ट हो जाता है कि इफ आई एम अ वर्किंग वुमन, आई एम नॉट डूइंग माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माय जॉब एज अ होम मेकर, एज अ मदर। हाँ, अभी फिर से स्नेहल मुझे दिखाई दे रही है, वो हामी भर रही है, ठीक है। तो कि अगर ये एक जो लेबल बन जाते हैं ना कि वर्किंग वुमन इज अ बैड मदर, इनएफिशिएंट मदर, बीबी जो है वो नॉट वेरी केयरिंग मदर, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकूंगी कि आज आप मेरी बेटी से पूछो या किसी से पूछो, तो जो जितना क्वालिटी टाइम
देना चाहिए, वो मैंने दिया, हाँ भाग भाग के दिया, लेकिन हर शाम को 4 बजे या 5 बजे उसको गार्डन में लेके जाना है, उसके साथ अच्छी बातें करनी है, उसकी पढ़ाई की चिंता करनी है, ये सब किया। और सुबह 4:45 बजे उठ के खाना भी पकाया शायद, जब जरूरत नहीं है तो पकवा भी लिया, लेकिन सब किया। बट एक ये मानसिकता, माइंड सेट कि वर्किंग वुमन इज अ वैन, शी इज नॉट परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज, और वो गिल्ट भी डाला जाता है महिलाओं के हृदय में खुद में कि अगर मैं वर्किंग हूँ तो मैं घर वालों को बीवी, मतलब बीवी हूँ तो मेरे हस्बैंड को छोड़ के आ रही हूँ, माँ हूँ तो बेटी बेटे को छोड़ के आ रही हूँ, मतलब कुछ तो मैं गलत हूँ। ये एक जो गिल्ट डाला जाता है, ये गिल्ट से बाहर निकलना है। जिस दिन मैंने ये सोच लिया कि आई कम फ्रॉम अ कम्युनिटी विच इज वेरी कंजर्वेटिव, कि वहां वर्किंग वुमन को एक गुनहगार ही मतलब कि समझा जाता है, कि तुम सुबह उठ के अगर 6 बजे 6:45 के लेक्चर के लिए निकलते हो तो इसका मतलब है कि तुमने घर का कुछ काम नहीं किया। ये किसी ने नहीं देखा कि 4:30 बजे उठ के या 5 बजे उठ के आपने आधा काम कर लिया है, ये नहीं, लेकिन एक मानसिकता में तो ये जो लोग क्या कहेंगे और गिल्ट वाला जो मामला है वो निकल जाए तो बहुत सारी समस्याएं उलझ सकती है। तो ये इकोनॉमिक की बातें की हमने कि असमानता कहाँ कहाँ है। एजुकेशन में सी द ड्रॉप आउट रेट, लिटरेसी रेट से ही शुरू करते हैं। लास्ट सेंसस जो अवेलेबल है उसमें भी 64% महिलाएं, 82% पुरुष, तो ये असमानता तो उसी में, हालांकि लिटरेसी रेट हैज इंक्रीज बट देयर इज अ गैप, ओके, द गैप बिटवीन द मेल लिटरेसी एंड फीमेल लिटरेसी। इज देयर अ गैप बिटवीन द ड्रॉप आउट रेशियो? यस, dropout is very sensitive in the secondary school, okay, that is a stage where dropout becomes very very sensitive issue. And how much is the dropout ratio? What I remember, recollect is like I'm not going into decimals, but secondary school के जो dropout है उसको अगर दिया जाए, ओवरऑल dropout rate is about 20%, लेकिन 20% dropout rate में से कितनी लड़कियां हैं? 70% dropouts are the girls. Look at this shocking, okay? 70% जो है, 70% of dropouts from the secondary school in India are girls. What does it mean? कि 5वीं के बाद, वो 4थी के बाद वो लड़की नहीं पढ़ेगी, 7वीं के बाद नहीं पढ़ेगी। I come from a village 100% earthquake affected village in Kutch called as Nani Tumri, and I can share with you my experience of last 30 years, 40 years with having conversation and communication or interaction with these young girls. क्यों ड्रॉप आउट है? तो पहली बात तो ये कि गांव में स्कूल की 5th तक था, जबरदस्ती बहुत मेहनत करके 7वीं तक आया। 7वीं के बाद पड़ोस के गांव में जाना है, पड़ोस के गांव में जाना है तो 2-3 पहले तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वो महंगी होती है, तो लड़कियों के एजुकेशन पे इतना खर्च क्यों करे कि उसके लिए हम आर्थिक मतलब कि इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? आखिर तो वो पराया धन है, दूसरे के घर जाएगी, वंशाचा कुलदीपक नाही है ती, ये सारी बातों में तो lesser investment in education of girls, that is again मानसिकता of the people कि लड़के को पढ़ाओ। I think Ritu will remember there was an ad which came, a प्रतिष्ठित इंश्योरेंस कंपनी की एक ad थी की बचत करा, मुलाच्या शिक्षणासाठी, मुलीच्या लग्नासाठी। व्हाट डज इट मीन? बचत करो, लेकिन किसके लिए? लड़के की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, और इसके ऊपर बहुत बहस हुई, बहुत लड़ाई संघर्ष हुआ और वो एड बदलना पड़ा लोगों को, ठीक है, एड को चेंज करना पड़ा, लेकिन उसके लिए संघर्ष महिलाओं को करना पड़ा कि ये क्यों नहीं कह रहे हो कि सबके लिए बचत करो, तो लड़की की भी पढ़ाई के लिए करो। तो ये जो है एक और से ड्रॉप आउट अमंग women because investment in education of women is not seen as a wise investment, it is seen as a liability कि वो पराया धन चले जाएगी, हमारे क्या काम आएगी। हालांकि आज एक ग्लोबल रिपोर्ट है जो कहता है कि 70% of the caregivers, those who are taking care of the elderly, are women and not men, कि जो बुढ़ापे का सहारा है, with all due respect to the men here, not to harm, but this is a research which is showing कि महिलाएं ज्यादा caring, फिर वो इन-लॉज हो या अपने खुद के पेरेंट्स हो या एक्सटेंडेड फैमिली हो, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, ट्रैवलिंग में
छोटी सी चीज है कि हमारे गांव से 5 किलोमीटर से दूसरे गांव में फ्रॉम तुमड़ी टू रामायणिया अगर लड़कियों को जाना है तो एक कास्ट के लड़के दूसरी कास्ट की लड़कियों को छेड़ रहे हैं, वो फिजिकली पिंच कर रहे हैं। इसके लिए माँ बाप ने मना कर दिया कि उनकी सलामती नहीं है, क्योंकि उसको बस से जाना पड़ेगा। बस 2 ही टाइम अवेलेबल है, तो लड़के तो साइकिल लेके चले जाते हैं लेकिन लड़कियों के पास साइकिल नहीं है। So there could be enough reasons for dropout in the sector, like, okay, when you're talking about education. You say career, gender-based careers and education. लड़कियों के लिए आप तो सब माहिर हो, हम सब टीचिंग में आए. This was by choice, but otherwise what is being said? Careers for women, which are better careers? Teaching, nursing, caregivers, beauty, personal care, hospitality, air hostess, सज धज के रहो, welcome receptionist बनो, ये सारे careers. So there are gendered careers, okay, which are also saying that आप यही बनो. मेरी एक भतीजी अभी पायलट बनी, okay? वो न्यूजीलैंड जाके पायलट बन गई, तो पूरे मतलब I felt very very happy about it. She's my first like okay niece जो पायलट बनी है, कमर्शियल पायलट बन के आ गई. लेकिन उनके बहुत करीब के रिश्तेदार ने ये कहा कि अरे वो पायलट बनने के लिए उसके पिताजी ने, उसके फादर ने 60 लाख रुपया खर्चा किया. इतना सारा, वो तो 1-1.5 साल में शादी करके चली जाएगी, इतना सारा पैसा वो लड़की के पायलट बनने के लिए क्यों खर्चा करना था. Now this is where mindset comes कि वो लड़की के लिए नहीं ये पूछा जाएगा कि 50 लाख उसके एजुकेशन में क्यों डाले गए हैं और उसका प्रोफेशन यही होना चाहिए, ये नहीं है. okay? बात करते हैं हेल्थ की. सेक्स डिटेक्शन, okay? Sex detection will be like okay, maternal, like okay, you have mortality rate. औरतों की हेल्थ का तो कुछ बात ही करने में मतलब मुझे मन ही नहीं करता कि क्या क्या कहूँ यहाँ, ठीक है. बट जिसका जन्म से पहले ही जिसको मार दिया जाता है, फीमेल फेंटिसाइड जैसे कहा जाता है, कि भाई जैसे ही पता चला तो एस्टिमेट से कि लास्ट 10 साल में सिर्फ इंडिया में 1.5 मिलियन लाइक गर्ल्स हैव बीन लाइक ओके, उनका जन्म ही नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्स डिटेक्शन टेस्ट. हालांकि जो इलीगल है फिर भी होता रहा है. देयर आर अबाउट 10 lakhs गर्ल्स हु आर मिसिंग एवरी ईयर. मिसिंग गर्ल्स, आर यू लिसनिंग टू मी? वो कहाँ गई? ट्रैफिकिंग में चली गई, कहाँ गई पता नहीं अपने को, ठीक है. लाइक ओके, औरत को अगर बीमार पड़ गई, ठीक है, घर में इलाज कर लो. डिलीवरी के बाद में कितने दिन रेस्ट करोगी? मेंस्ट्रुएशन है तो पास में बैठो. लाइक ओके, क्यों ये बीमार पड़ जाती है, बार बार बीमार पड़ती है, तो रोतलू बहू है, कुछ काम की नहीं है. सो इवन अबाउट हेल्थ की, अगर उस मेंटल हेल्थ की तो बात ही छोड़ दो कि औरतों की मेंटल हेल्थ इतने सारे प्रेशर से, अगर कोई कह दे कि भाई आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड, तो उसको अलाउड नहीं है कि वो क्यों कहेगी कि आई एम वेरी स्ट्रेस्ड या आई एम डिप्रेस्ड, क्योंकि स्टिग्मा है कि आपको ये नहीं कहना है. काम तो काम ही होता है, उसमें क्या आप स्ट्रेस होगे. सो नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट इवन you have mental health which are the issue where there is tremendous inequality. मर्द है वो स्मोकिंग करके फूंक देगा, अल्कोहल ले लेगा, तो कोई ये नहीं कहेगा कि वो अच्छा वो स्ट्रेसफुल है, उसको बहुत ही टेंशन है, इसके लिए वो बीड़ी या सिगरेट पीता है. लेकिन वही काम अगर लड़की ने कर दिया तो वो बहुत बदतमीज है, बहुत बेकार है, असंस्कारी है, लेकिन उसको भी स्ट्रेस है ये नहीं कहा जाए. अब ये टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटीज. ओके, बात आती है सामाजिक रीति रिवाजों की. तो जैसे मैंने शुरुआत की मेरे फोटो से, वैसे कि बहुत छोटी छोटी बातें होती है. जैसे शादी की बात है, भाई कपड़े कैसे पहनना, तो वो पिंक एंड ब्लू वाला मामला कि भाई लड़की है तो पिंक है, लड़का है तो ब्लू ही होना चाहिए कलर, ठीक है. आप शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहन सकते हो. There was a nice term when I was reading, I came across, and it says top freedom. What does that top freedom mean? Freedom from the top. What does that mean? मुझे बहुत अच्छा लगा ये वर्ड. क्यों अच्छा लगा? इसका मतलब ये है कि जो किसी को भी ये फ्रीडम हो कि आपके जो टॉप कपड़े हैं वो आप उतार दो, ठीक है. अभी लड़कियां हंसने लगनी चाहिए कि फिर वो अगर सलमान खान या शाहरुख खान शर्ट उतार के अपने कितने जो भी पैक्स है, 6 पैक जो भी है, मुझे तो शब्द भी नहीं आएंगे ठीक से, वो दिखाता है तो वो मैचो मैन है.
बट कैन यू इमेजिन कि 56 इंच की छाती की बात एक कोई करे तो बड़ा गर्व से हम कहते हैं कि ये 56 इंच की छाती वाले ने ये कहा है, लेकिन वही बात 56 इंच की छाती वाली महिला अगर कर दे कि मैं भी अपनी 56 इंच की छाती दिखा के ये बोल सकती हूँ, तो कितना अजीब लगेगा। ठीक है, आई वॉज इमेजिनिंग कि नंगा पुंगा ये मर्द है, उसको कितना अच्छा लोग मतलब सराहते हैं कि वाह माचो मैन है करके, वाह। लिटरली आई वॉज इमेजिनिंग कि लेट्स हैव ब्रालेस, बर्न द ब्रा, ये मूवमेंट थी 20-25-30 साल पहले की जो भी है। मैंने भी 20 साल पहले ब्रा पहनना छोड़ दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा बर्न द ब्रा बहुत पहले ही शुरू हुआ था। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मुझे बंधन चाहिए ही नहीं। बट ये टॉप फ्रीडम, मैं सोच रही थी कि मैं भी सलमान खान की तरह आज के सेमिनार में मुझे कुछ कपड़े चेंज वेंज नहीं करने थे। घर में मैंने यही पहना है, मैं यही पहना है, मैं बोली ये निकाल के भी बैठूं तो क्या फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, मेरा अगर टॉपिक यही है, लेकिन यहाँ कांड हो जाता, शायद मैं जेल में हो जाती कि हाउ कुड यू बी लाइक ओके, आई मीन नंगी थोड़ी औरत रह सकती है या दिखा सकती है वाला मामला। सो इट मे साउंड वेरी, सर पे पल्लू रखो, बहुत छोटी सी बात है कि सर पे पल्लू रखो, तो ये मर्यादा का मतलब लक्षण है। भाई मर्यादा मान जो है वो कहाँ, मतलब कि आपके सर में बाल ढकने से बाल की ला जाती है आपकी, या मर्यादा मान जो है वो दिल से होना चाहिए। ये सारे संघर्ष मैं कर चुकी हूँ अपनी लाइफ में और अभी भी चल रहा है। ठीक है, शादी में थिंग्स लाइक मंगलसूत्र, क्यों सिर्फ औरत ही डाले मंगलसूत्र? मंगल और सूत्र, तो मंगल है ना वो कल्याणकारी है, शुभ है, वेल विशिंग है, और सूत्र जो है वो धागा है, बांधने वाला है। तो ये दोनों के लिए होना चाहिए। चलो उठो, जब भी शादी हो जाए तो बोलो कि तुम भी मैं डालूंगी लेकिन तुम्हें भी पहनाऊंगी। और ये असल में हुआ है। हमारी बहुत करीब वाली दोस्त मेरी बेटी की, उसने कहा कि मैं शादी, वो अर्थात फॉरेनर से कर रही थी, वो साउथ के तमिलनाडु के एक विलेज में शादी हुई, धामधूम से हुई। उसके दूल्हे ने कहा कि मुझे बहुत इंडिया से प्यार है, मैं एलिफेंट, हाथी पे आऊंगा बारात में तुम्हें लेने। दिस हैज लिटरली हैपेंड अबाउट 4 years बैक। तो वो अब मैं नाम बदल देती हूँ, लाइक ओके जानकी, लेट अस से, ठीक है। तो जानकी ने कहा तुम बिल्कुल हाथी पे आओगे, लेकिन मैं भी तुम्हारे सामने, मैं साथ साथ में बारात में शामिल होंगी और मैं भी हाथी पे ही आऊंगी। पूरे गांव में बखेड़ा हो गया कि अरे बारात में तो दूल्हा आता है, दुल्हन कहाँ आती है बारात में, और वो भी हाथी पे। उसने कहा नहीं, शादी तभी होगी, वो हाथी पे आएगा तो मैं भी हाथी पे आऊंगी, अगर वो मुझे मंगलसूत्र पहनाएगा तो मैं भी पहनाऊंगी, अगर वो कहता है कि सिंदूर लगाना है तो सिंदूर भी, कुछ तो वजह है ना सिंदूर क्यों लगाना है, सुंदर दिखता है, कॉपर है, हेल्थ के लिए अच्छा है, तो बोले मैं भी उसको लगा दूंगी, क्या फर्क पड़ता है। पूरे गांव में बवाल मच गया कि ये लड़की तो तौबा तौबा, पढ़ी लिखी लड़की थी, फॉरेन एजुकेशन से, बोले शादी मैं करूंगी लेकिन ऐसे ही करूंगी, अगर आपको ये रीति रिवाज चाहिए तो मैं वैसे ही करूंगी। पॉलिटिक्स की तो ये जो सामाजिक है, विधवा शुभ काम में नहीं आ सकती है, क्यों है, सवाल खड़े करो ना। ठीक है, थोड़े से पॉलिटिक्स की तो बात छोड़ो, इंडिया में रिप्रेजेंटेशन कितना है। हम लोग बहुत नाचते हैं कि इस बार जब इलेक्शन के बाद में मिनिस्ट्री अनाउंस हुई तो लोगों ने मुझे फोन कर करके कहा देखो नई सरकार में 11 महिलाएं या 12 महिलाएं मिनिस्टर हो गई। मैंने उनको क्विकली, इतना तो अंक गणित आता ही है, मैं बोला उसका परसेंटेज निकालो, 524 में से अगर 11 है तो कितना परसेंटेज होता है। ठीक है, तो बोलती बंद हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, लेकिन 10 साल पहले उससे कम थे, 9 ही थे, अभी 9 में से 11 हो गई। तो लोग ये पर्व मना रहे हैं कि 11 महिलाएं प्रधान हो गई, मंत्री हो गई, तो ये पर्व है, सेलिब्रेशन है। बट व्हाट परसेंटेज, व्हेन यू लुक एट इट, वी हैव रीच्ड some 12 to 13% representation in the parliament, whereas countries like Iceland have almost 53% representation of women in the parliament. Okay, तो हम जब झंडे गाड़ते हैं और लगते हैं कि सुधार हो रहा है तो थोड़ा संभल जाए। राज्यसभा में तो 9% गिर गए, 10% था उसमें से भी कम हो गया, 9% women represent। वहां बातें होती है 33% रिजर्वेशन की और हालात में है हम सिर्फ कितने 9%, क्योंकि राज्यसभा में तो नॉमिनेशंस भी ज्यादा होते। सो वेदर यू टेक सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, भाई मान लो कि इनइक्वालिटीज है। इतना सारा ग्रिम पिक्चर दिखा के ओनली 2 or 3 minutes, सो व्हाट डू वी डू? हाथ में हाथ बैठ, सर पे हाथ रख के बैठ जाए? नहीं है। व्हाट कैन वी डू? जो है कि भाई, जो मर्दों ने यही कहा था ना कि 2 दिन जिसमें मास्क लगाए वो मर्द
कह रहा था कि पूरी जिंदगी औरत को पर्दे रहने दो, खुद 2 दिन मास्क में उब गया कि मैं क्या करूं, हैरान हो गया वैसे वाले। तो अभी ये समय आ गया है कि हम ये सोचे कि व्हाट डू वी डू? What you do is begin from yourself, learn to say no, stop being guilty, speak up, discuss these issues, okay? Bring out the reality. Don't glorify the things which are not the reality, okay? Have the courage, the dare to differ, have the courage of conviction and say, ठीक है मैं अलग हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अलग हूँ, लेकिन सच है ये और मैं यही करूँगी, okay? तो ये जो है कि मैं क्यों डरूं, okay? मैं क्यों डरूं, क्योंकि मैं सच हूँ। ये सपना देखने से मैं ये और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने प्रेडिक्शन किया कि ये सच्चाई बदलने के लिए, जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए कितने साल लगेंगे? स्वाति, मिसबा, कैन यू टेल एनी वन ऑफ यू कितने साल लगेंगे ये बदलाव लाने के लिए? नो आइडिया मैम। नो आइडिया? जिसने नो आइडिया बोला वो गोली मारो अपने आप को। अगर आइडिया नहीं है तो क्या करोगे? ठीक है, तो गोली यहाँ से तो नहीं मैं मार लूंगी, अपने आप को मार लेना। आइडिया अपने को ही लाना पड़ेगा, तभी चाहिए बदलाव। आपकी खुद की जिंदगी में चाहिए क्या? यस मैम, यस। क्या मैकिन्जी रिपोर्ट ने कह दिया 200 साल लगेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कह दिया 100 साल लगेंगे। आई हैव प्रूफ्स, आई कैन सेंड यू ऑल द रीडिंग्स हियर। आशा गाला कहती है ये लोग सब झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? मुझे मेरी लाइफ टाइम में, मैं कितने साल और जीऊंगी पता नहीं, मैं अभी 66 इयर्स चल रहा है मेरा। कितने साल आप बोल दो शतायु वो तो मैं गिन लूं कितने साल हो गए, ठीक है, लेकिन मेरी जिंदगी में मुझे बदलाव लाना है और इस बदलाव के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। और इसके लिए मुझे क्या करना है कि मैं नहीं डरूंगी। मैं क्यों ये सोचूंगी कि बदलाव नहीं आएगा? मैं ये क्यों सोचूं कि ये जो मेरा सपना है वो पूरा नहीं होगा? मैं यही सोचूंगी कि मैं अपना सपना पूरा करूंगी ही करूंगी। वो मनी वाला सपना नहीं है, वो बदलाव वाला सपना है और वो मैं पूरा करके ही रहूंगी। कि जैसे वो अकबर बिरबल की कहानी में कहा था ना कि दूसरे भले सारे वो उस कुंड में एक प्याला दूध डालने को कहा था, तब पानी डाला सबने, लेकिन मैं उसमें एक प्याला दूध डालूंगी ही डालूंगी, उसमें कभी बेईमानी नहीं करूंगी। जब इस श्रद्धा से, इस निष्ठा से, ना तो मैं डरूंगी ना मैं सोचूंगी कि ये बदलाव नहीं आएगा, मैं जरूर बदल के रहूंगी। हमारे जमाने में आई थिंक रितु वुड रिमेम्बर इफ शी स्टिल देयर और समथिंग लाइक, हम गाना गाते थे कि उठ जाग मेरी बहना, चल साथ मेरी बहना, अब ये जुल्म नहीं सहना, अब ये जुल्म नहीं सहना। ये सारी बातें जो मैं 45 साल पहले गाया करती थी गीत, आज भी वो सांप्रत है, लेकिन बदलाव जरूर आएगा। Begin from yourself, start with, be the change that you want to be, okay? Thank you very much. I have taken about 48 minutes. I was given 45 to 50 minutes. Yeah, if there is any scope for interaction, I would be very happy, like, okay, yeah. Thank you so much, ma'am, for this wonderful session. It was really very, very informative. I would request the participants to post their questions in the chat box if there's any. I would be happy if they in person, if they can pop up and talk, like, okay. If anyone wants to talk, they can just raise their hand, they can unmute. Oh, Aligarh se Dr. Tomar aaye hue hai. He's the office bearer of Indian Economic Association, all India level. I'm so pleased. Like, hey, yeah. Ma'am, I think Ritu ma'am is here. Ritu ma'am, Ritu is there. Can we? Can you unmute yourself? Ritu ma'am, Liji here. Can you unmute yourself? Can somebody unmute Diwan Ritu? Hi Ritu, you are being invited. Are you still there? Ritu was to join a little later. She told me. No, ma'am is there. I saw ma'am. Yes, I've been there from the beginning. Yes, and yes. Very delighted to be part of this and hearing this. And I've already put it in the chat comment. I think it's really, the topic is excellent, and the way Asha related it to, I'm sorry, I have to call her Asha and not Professor Gala, because we have been classmates and I think co-travelers on this path of gender equality for a very, very long time. So delighted to be here. And I think the way you explained it and related it
to the dreams of, I think, our young students and our younger generation is something which is very, very commendable. So thank you so much, Asha, for this. Very, very Thank you, delighted. Ritu. This is so Thank very humbling and okay, promising. Thank you. आखिर रितु जैसे, कल्पना जैसे लोग हमारे साथ हैं, मृदुला, उज्ज्वला जैसे, और डॉक्टर तोमार, और मर्दों को भूलना, हमारी लड़ाई मर्दों से नहीं है, समाज व्यवस्था से है, प्लीज रिमेम्बर दैट। और इसीलिए समानता को सपना क्यों सोचूं मैं, आखिर तो मुझे भरोसा है, विश्वास है, और ये भरोसा और विश्वास है, हमारी सबकी नियत और ताकत पे विश्वास है। सही बात है, very, very correct. And they are travelers with us. I mean, unless men are there as supporters, we cannot attain gender equality. Absolutely. Very much so. Thank you. Thank you. Thanks Ritu ma'am, good once evening. again to the organizers. Ma'am, there is one question from Khan Zulfikar that, ma'am, with regards to developed country in India, number of female PM is less. Why in developed countries the number is so less? Sorry. 2 बार यहाँ developed है. Yeah. Khan, ma'am, with regards to developed countries in India, number of female PM is less. Fine. Can somebody okay, Khan, Zulfikar, Hayat Saab, आप ये कहना चाहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर, महिला प्राइम मिनिस्टर ज्यादा नहीं है, या हमारे यहाँ नहीं है? बिकॉज दोनों जगह आपने डेवलप्ड लिखा है, तो थोड़ी कंफ्यूजन है। Maybe some typo error from his side. देखो, जैसे मैंने कहा, इफ आई कैन इंटरप्रेट इट राइटली, कि ये women's inequality is a global problem, not restricted to India. तो हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर हो गए, ओके, आई मीन प्रेसिडेंट भी हो गए वाले मामला हो गया, तो हर जगह there is this glass ceiling that we are talking about. Even in the political sphere, it is very much there. Okay, when you look at it, number of parliamentarians, number of office bearers or ministers, है ही है. Okay, लेकिन ऐसा नहीं है. There are countries like Iceland, Finland, Netherlands, Sweden, कि जहाँ बहुत सारे okay, I mean opportunities दी जाती है. आखिर असमानता okay, I mean inequalities काहे की है, access की है, opportunities की है, resources की है, respect की है, and all that does vary, and you have these indexes which you can go through. कि top list में हम कहीं नहीं है. By the way, I did not want to demean so much, but we are 122nd out of 153 countries on the gender equality index. Okay, तो हमारे आगे 121 countries हमारे से बेहतर है इस मामले में. Okay? Ma'am, we have one of our old colleague and now currently she is running a Bani Communications in Kolkata, Sunila Banerjee. So now I want her to ask you the question, although she has put it in the chat box. Sunila ma'am, Sunila Banerjee, Sunila Mitra. Ma'am? Yeah, she had asked for the link. I remember that. Yeah, yes. Ma'am, you can talk. Yes, good evening, madam. Good evening. Yeah, my question is, what is your suggestion for modern women? How should they stand in modern times to see for gender equality? Your suggestions. My suggestion for gender equality. आज की लड़कियां क्या कर सकती हैं इसको अपनाने के लिए, कि अपना समाज को स्तर पाने के लिए? इसीलिए पहले मैंने इसीलिए लास्ट के जो वो क्या बोलते हैं ना 70 मिनट वाला मामला जो पावर हाउस है, बिलीव दैट फीमेल्स आर अ पावर हाउस. ओके, बिलीव इन देमसेल्फ एंड फाइट फॉर इट. ये लड़त है, कुछ आसान नहीं है कि हर पहलू पे ओके पीपल, women or girls, especially young girls, have to speak up, fight. Okay, but believe, and there has to be conviction. कि whatever I believe is true. It's not ऊपर कि किसी ने कहा, आशा गाला ने कहा या सुनीला मैडम ने कहा, इसके लिए नहीं. I believe in this. I would strive for the equality. In a very close family, this is a चर्चे हो रहे हैं अभी. Okay, हर एक की अपनी लड़ाई है और खुद वो लड़ाई लड़नी है. दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के ये लड़ाई लड़ने वाला मामला नहीं है. From micro to macro फैलेगा ये, लेकिन लड़ाई खुद से शुरू होती है. So it begins from me. Liji, now can you just share that 4 or 5 slides so that it can... Yes. Sunila, I hope I have just broadly touched upon what you want. Yes. Okay, yeah.
Can you see, ma'am? Yeah, Yes. you can. So, okay, just keep on changing it. It's Yeah. self-explanatory, okay, of what I said, yeah, earlier. Glass ceiling that we were talking about. मीन्स मैडम, इसका मतलब हमें हमारी लड़कियों को वो उत्साह देना पड़ेगा और विश्वास जगाना पड़ेगा कि आप अपनी सोच को मुक्त रखिए, so that you are able to, you are having that confidence to fight and have equality in the society. इसलिए मैंने कहा कि आपकी नियत और विश्वास दोनों चाहिए, कन्विक्शन चाहिए, करेज चाहिए, बिलीव्स चाहिए. प्लीज चेंज. और खुद बोलिए अपनी बेटी को आगे रखिए. प्लीज चेंज द स्लाइड. विश्वास चाहिए बेटी, वो सब. स्पीक अप. मी टू. बॉलीवुड में भी तो यही बोल रहे हैं ना, पूछ रहे हैं लोग. ठीक है, प्लीज चेंज. या सिंस वी हैव लिमिटेड टाइम. Sunila ma'am, this is my answer. Okay, it starts with all of us. Like, okay. There was a question like whether migration will affect women. Yes, of course. Migration में सबसे ज़्यादा effect women पे होना ही होना है. Number of reasons is dislocation, uprooting. हर नई जगह पे जाओ, वहाँ आपको बस घर बसाना है, नौकरी या इनकम का जरिया देखना है, माहौल बदला हुआ होगा और एक्सपेक्टेशन तो वही रहेंगे कि औरत को सब एडजस्ट करना है, चेंज है तो. और माइग्रेशन में कौन माइग्रेट करेगा? आई हैव इंटरेस्टिंग केसेस वेयर women are doing very well and for their career promotion, if the husband has to migrate, 90% of the cases it will be no. मैं नहीं जाऊंगा, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो कि यहाँ प्रमोशन मत लो. इट यूज्ड टू बी इन द बैंकिंग सेक्टर कि ऑफिसर पोस्ट नहीं लेना है, कि ऑफिसर से बदली ट्रांसफर हो जाएगी दूसरे शहर में. इससे अच्छा है कि तुम यहीं रहो, मतलब कि एक सीनियर क्लर्क की पोजीशन में रहो, चलेगा, 5,000 कम कमाओगी, चलेगा, लेकिन तुम्हारी प्रमोशन की वजह से मुझे नहीं जाना है. बट वाइस वर्सा, क्या करें, जाना ही पड़ेगा. उनकी ट्रांसफर हो गई ना, उनकी बदली हो गई, अभी तो हमें जाना ही पड़ेगा. Yes, Rajesh sir. So migration will definitely affect everything about women's, like, okay, day-to-day life, her economic status, her mindset, more so. Okay. Simple ले लो ना, घर नया बसाना है तो कौन बसाएगा? घर में फर्नीचर कहाँ रखना है, साफ सफाई करनी है, और तो कोई करना है ना. आप करते होंगे तो पता नहीं. I'll be very happy to hear that. Yeah. We began an hour back almost, like, okay, at 5:10 or so. It is 6:09. So yeah, 45 minutes to 1 hour, like, okay, yeah. Thank you all those who've given, like, okay, wonderful compliments. I am especially very, very happy, though I do not know who all had joined, but extremely happy that besides me, if there are 191 people, मेरे लिए ये 191 सुनने के लिए 1 घंटा, like, okay, this is 191 into 60 minutes. So much of time for me. This is very humbling. Hats off to all of you. Love you. Yeah. And SM Shetty College is बहुत प्यारा है मुझे. हालांकि हमारा रिश्ता, किसी ने आज मुझे पूछा कि तुम ये सब सेशंस लेते हो तो बहुत कमाती होगी. मेरे कजिन ब्रदर ने मेरे मजाक उड़ा रहा था. मैंने बोली कि अभी तक तो मैंने पूछा नहीं है उनको, अब पूछ लूंगी. तो इतना सारा प्यार दे रहे हो, उसे पता नहीं चलेगा. मन पैदा हो. नहीं, बहुत सालों के बाद सुन के बहुत अच्छा लगा मैम आपको. हम लोग ऐसे सेशंस में मिलते हैं, बट हाँ, आपके सेशन सुन के बहुत टाइम हो गया. वेरी नाइस. बुलाते रहो. हाँ, डेफिनेटली. वुमेन एम्पावरमेंट में हम सब शामिल है ना, तो बुलाते रहो. और
Thank you very much, all of you. Like, okay, yeah, anybody else? Yeah. Lovely. Yeah, no, All I'm those so glad. personal invitation, those who joined. NSS made my day too. Yes, NSS made my day too, because I met you. Along with that, Ritu ma'am was there, my own teacher. I'm so happy. My professor was there. ये क्या है, फ्रेंडशिप में थोड़ा ऐसे चलता है ना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कि अरे तेरे सेशन में मैं आती हूँ, मेरे इसमें तू आएगी कि नहीं वाला मामला हो जाता है ना वैसे. Very nice, ma'am. Vijay, we can Thank you, continue. ma'am. It was wonderful. Bye, 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 bye. Thank you. Wait, ma'am. Just Vote wait. of thanks Yeah, to सुन vote के of- जाओ मेरे बच्चों का. Swati, Yes, I'm continuing. Thank you once again, ma'am. I would request all the student participants to kindly fill the feedback sheet. Just send in the chat box before leaving. Then now I would like to call our NSS volunteer Purnima Jagtap to give vote of thanks. Thank you, Swati. Good evening, everyone. I, Purnima Jagtap, NSS volunteer, on behalf of NSS unit of Bansangas Assamsheti College of Science, Commerce and Management Studies, Powai, extend my heartfelt gratitude and thank our resource person of the day, Mrs. Asha Gala ma'am, who spared her time to enlighten this webinar on turning dream of women's equality into reality on the occasion of Women's Equality Day. I am glad that all of us got a chance to be a part of such an informative webinar. I would also like to thank our benevolent management for supporting us, our principal sir, Dr. Sridhara Shetty, our vice principal ma'am, Dr. Liji Santosh, our vice principal sir, Professor Sandesha Shetty, program officers, Professor Vijay Vishwakarma sir, and Professor John Menezes sir, teachers in charge, Professor Ashish Navik sir, Professor Swati Shetty ma'am, and Professor Richa Sharma ma'am for supporting us and guiding us throughout the event. I would also like to thank our technical team for providing Zoom platform, my teammates who worked behind the scenes to make this event successful. And last but not the least, I would like to thank all my dear teachers, non-teaching staff, students, and all my dear participants for devoting their time and making this webinar a huge success. And I hope you all enjoyed this wonderful webinar. Thank you. Thank you, Vaishnavi. Participants, please note certificate email to you in 7 working days. Thank you so much. can I request everyone to kindly switch on their camera so that we can take a pic? And yes, this will be our memories. And especially, yes, ma'am, thank you so much for and guiding us and inspiring us. Sushant, can you please take a screenshot, beta? Thank you so much, everyone. Thank you so much, everyone, for joining and making a huge success. And it's all because of you, ma'am, Asha ma'am. Literally speaking, it was very nice, very nice. And we are going to keep every month at least 1 or 2 sessions of yours, ma'am, because our volunteers are very much inspired by hearing you here. You know, to NSS volunteers, NSS is my life. Okay, मेरा रिश्ता NSS के साथ कितने साल का है मैं कहूँ? अगर मेरी उम्र 65 years की है, तो उसमें से 55 years or say at least 50 years are with NSS. Okay, तो NSS is life. Okay, तो कभी भी आप आधी रात को बोलो, NSS के नाम पे मैं कुछ भी कर दूँगी. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah. Thanks. Thank Mr. you, Vijay. ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Bye. ma'am. Bye-bye. मैं यहाँ खाली हूँ. अगर किसी NSS volunteers को कुछ और बात करनी है तो I mean others can leave जिनको ऐसे ही कुछ